Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a special video where I'll be discussing about the monthly policy review, also known as MPR. This is being published by the PRS Legislative Research, and we are discussing MPR for the month of January. So whatever news that has reported in the month of January, the entire news used to be published in the month of February. So this is for the month of January. The publication was there in the month of February itself. So as you know, whatever news that is there for the entire month is being compiled and it is published on next month. So we're discussing for the month of January. So let's see what are important points or important news that is relevant for you from prelims and mains examination perspective. So before we start, a brief about the PRS Legislative Research. This was an independent organization which was formed in 2005. It helped to strengthen the legislative process to make people more informed, more transparent and participatory. You can read more about this from this video slide, or you can pause this video, you can read it out. Now coming to the important news that was there for the month of January. First we have Ayushman CRPF scheme. This is one of the important scheme by Government of India for the paramilitary forces. If any one of you is preparing for the CAPF examination which is being conducted by UPSC, this can be a very relevant questions there. So the Ministry of Home Affairs has launched Ayushman CAPF scheme. और अगर बात करें इस स्कीम के इम्पोर्टेंट्स की, तो ये सबसे पहले ये जो स्कीम है दिस वुड बी एप्लीकेबल ओनली टू पर्सनल डिपेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. ऐसे जो भी पर्सनल जो CAPF को खास करके उस पैरामिलिट्री फोर्स के पार्ट हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, आयुष्मान CAPF. नाउ व्हाट इज CAPF? इंडिया में अगर जो CAPF की जो फोर्सेज है उसकी टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो इट कंप्राइजेज ऑफ 7 सेंट्रल फोर्सेज. जो टोटल फोर्सेस में इंक्लूड होती है वो 7 फोर्सेज हैं. द फर्स्ट इज असम राइफल, सेकेंड इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, थर्ड इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑल्सो नोन एज CRPF, फोर्थ इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जो कि मोस्टली VIP को सिक्योरिटी देती है, या फिर कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती है इमरजेंसी में तो NSG के प्रोटेक्शन जो कमांडोज हैं उनकी यूज़ की जाती है. फिफ्थ इज सशस्त्र सीमा बल ऑल्सो नोन एज SSB, और उसके बाद है ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको CISF के नाम से भी जानते हैं, राइट. सो दीज आर द फोर्सेज, दीज आर द 7 फोर्सेज दैट कंप्राइजेस CAPF. तो ये जो आयुष्मान CAPF है वो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए. Now what is all there about the scheme? क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्कीम के? तो अंडर दिस स्कीम जो भी सर्विंग पर्सनल होंगे CAPF के एंड देयर डिपेंडेंट वुड रिसीव अ कैशलेस हेल्थ सर्विसेज, राइट, थ्रू आयुष्मान भारत और PMJIT प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू. सो दीज बेनिफिशरी एंड वुड बी डायरेक्टली बेनिफिटेड टू द CAPF पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट में उनकी फैमिलीज, उनके फादर, उनके मदर और उनके चिल्ड्रंस होंगे. Now, Ayushman Bharat scheme aims to provide a cover of 5 lakh rupees per family to 1.7 crore families and no capping on the जो फैमिली की जो साइज है इसमें कैपिंग नहीं रखी गई है, ना कि फैमिली के एज में भी कैपिंग रखी गई है. सो इवन अ न्यू बॉर्न एंड अ ओल्ड पीपल ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ द फैमिली वुड बी कंसिडर अंडर दिस आयुष्मान भारत PM जो CAPF की जो स्कीम है उसके अंदर, belonging to the poor and vulnerable portion of all populations. Now additionally अगर बात करें दिस इज अ कैशलेस सर्विसेज, तो जो बेनिफिशियरी के जो बैंक अकाउंट लिंक्ड होंगे उनमें डायरेक्टली कैसे पैसे जाएंगे. एंड द स्कीम वुड ऑल्सो बेनिफिट about 24/7 कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन ग्रीवांसेस मैनेजमेंट सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स होगी, एंड फ्रॉड एंड अब्यूज कंट्रोल सिस्टम वुड बी ऑल्सो देयर अंडर दिस स्कीम CAPF Ayushman. Now the second news, that is working group on digital lending. This is again in the important news because RBI ने कुछ important groups formed की थी digital lending को लेकर के, उसके बारे में कुछ important बातें. So the Reserve Bank of India has constituted a working group on digital lending. This include through the online platform and mobile apps. The group was headed by the executive director of the RBI, and they will have the 5 member and the internal external members भी होंगे, कुछ internal members भी होंगे और कुछ external member भी होंगे जो कि constitute की गई है. So the working group on digital lending. Now what is terms of reference? क्या क्या terms of reference दिए गए हैं और जो कमेटी ने terms of reference दिए थे उसके बारे में अगर बात करें तो evaluation of digital lending activities on access, वहाँ पे क्या स्टैंडर्ड आउटसोर्स है, डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से चल रही है, RBI कितनी रेगुलेटेड है उस एंटिटीज़ को लेकर के, उसके बारे में जिक्र है. फर्स्ट रेफरेंस. द सेकंड रेफरेंस इज आइडेंटिफिकेशन रिस्क
posed by unregulated digital lending on the financial stability and consumers, because we have seen digital fraud has taken its length and breadth. So ये बहुत ही जगह बहुत ही अलग अलग तरीके से डिजिटल प्राइसी हो रही है, खास करके अगर बात करें जिस तरह से यूपीआई है या फिर क्यूआर कोड के जो स्कैम्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आरबीआई ने उसको कॉग्निजेंस में लिया है और उसी टर्म्स पे कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए ग्रुप बनाई गई है। Now, suggestions regulatory changes to promote orderly growth of digital lendings. Suggestions measure of enhanced consumer protections कि जो consumer के protections हैं उसको और कैसे बेहतर किया जा सके. And the group has been advised to submit the report within 3 months. So these are the reference that were provided to the working group और उनको 3 महीने का मोहलत दिया गया। जो ड्यूरेशन जो दी गई है 3 मंथ्स की दी गई है, उनके बीच में इनको ये सारे एस्पेक्ट्स पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे अपने रिपोर्ट सबमिट करने होंगे। Now coming to the other news, that is amendment to regulation for institution of eminence. तो जो IOE है, जो institutions of eminence होते हैं इंडिया में, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि जो भी ऐसे एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं उनको IOE का टैग दिया जाता है। So we have lots more institute which is there. You can refer to their website also. So Indian Institute of Technology is one among them. BHU, बहुत सारे ऐसे और IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, ये सब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं उसमें। Now the University Grant Commission notified amendment to the regulation of institutions of eminence. यहाँ पे कुछ regulation लेकर के सरकार ने कुछ amendment की है। And these institution of eminence scheme was launched in 2016. This is a new scheme. It's already 3 years ago. So under this scheme, 10 public institutions and 10 private institutions would be declared as the institutions of eminence. बात करें जो proposed changes हैं उसमें क्या क्या important चीज़ें change की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। So among the key changes, the regulation permit the institution of eminence to set up an offshore campus. तो इंडिया के बाहर खास करके जो आउट स्टेशन कैंपस हैं उनको establish कर सकते हैं outside India, and off campus center outside within main campus of India. तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो ऑफ कैंपस है, ऑफशोर कैंपस है, और एक ऑफ कैंपस सेंटर है। तो दोनों में फ़र्क है, ये दोनों स्टैब्लिशमेंट के लिए अलाउ की गई है। एंड ऑफ कैंपस सेंटर्स की अगर बात करें, सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस आर परमिटेड टू सेट अप अ मैक्सिमम ऑफ 3 ऑफ कैंपस सेंटर्स इन 5 years। तो 5 साल की ड्यूरेशन में एक इंस्टीट्यूशन जिसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की टैग मिली हुई है वो 3 ऑफ कैंपस बना सकते हैं विद इन 5 years, सब्जेक्ट टू नॉट मोर देन 1 सेंटर इन अ ईयर। सो दीज आर सम ऑफ द क्लॉजेस एंड द रिस्ट्रिक्शन विच इज गिवन। कमिंग टू ऑफशोर कैंपसेस के बारे में अगर बात करें, सो द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आर परमिटेड टू सेट अप ऑफशोर कैंपसेस विद इन द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यू शुड नोट यहाँ पे जो अप्रूवल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से चाहिए होगी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ खास करके किसी और से। तो यहाँ पे एनओसी की अगर बात करें तो अगर जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूवल देती है तो उसके बाद जो एनओसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देगी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो कैंपस है दैट इज गोइंग टू बी स्टैब्लिश इन आउट स्टेशन इंडिया, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। Now the institute must ensure that they follow a same norms and standard for admission, curriculum, examination for the main campuses as well. तो जो criteria, जो eligibility है, जो curriculum है, जो procedures हैं, would be applicable same to the offshore campus as well. Now the function of the off-campus center would provide an offshore campus of the institution that would be reviewed by an expert committee. तो जो भी फॉरेन में कैंपसेस होंगे उनके लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाएगी। They will meet once in a 3 year, which can be recommended discontinue off campus or off center campus के accordingly. So this is something regulations को लेकर के इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के ऑफशोर सेंटर्स और ऑफशोर कैंपसेस के लिए ये सारी कुछ चेंजेस की गई हैं। Now Inter-country transferred vehicles rule 2021. There are some changes here also, and this is a new rule. So the Inter-country transferred vehicles rule 2021 were notified by the Ministry of Road and Transport and Highway. तो जो पूरा रूल है ये एम करता है टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स गुड्स विद द नेबरिंग कंट्रीज एज पर द MOA, जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनीज के बीच में, जो 2 कंपनी साइन करती हैं उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, और जब इस तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जनरली मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स कहते हैं, MOA. सो दिस वाज साइंड। तो कुछ 4 सिमिलर रूल्स हैं जो कि ऑलरेडी इश्यूज किए गए हैं फॉर बस सर्विसेज बिटवीन अमृतसर टू लाहौर, न्यू दिल्ली टू लाहौर, अमृतसर नानक साहिब
and Calcutta to Dhaka. So these are the four bus routes that would be operated under Inter-Country Transport Vehicles Rule 2021. Now ये जो रूल है that seeks to create a uniform rule to facilitation the movement between the neighboring countries, और ये सुपरसीड करेगी जो पुराने रूल्स थे बस सर्विसेज बिटवीन अदर कंट्रीज को, तो उनको सुपरसीड करके ये नए रूल्स अब एप्लीकेबल्स होंगी इन बेसिकली जो मैंने आपको कंट्रीज बताए हैं, अमृतसर लाहौर, न्यू दिल्ली लाहौर, अमृतसर नानक साहब एंड कैलकाटा एंड ढाका. Now coming to the key points which is there in this provision. So the rules specify the procedure for obtaining the inter-country transport permit. A rule ये provide करेगी जितने passengers हैं that must have a list of passengers with details about their nationality. So these are the criteria that has to fulfill by the service provider, the bus services. Now goods vehicle must also be a valid invoice in e-way among the other documents. तो e-way भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ने इस बार के जो बजट में खास करके इकोनॉमिक सर्वे में ई-वेल के बारे में बहुत सारा बातें कहा. तो ई-वे इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आप ई-वेल के बारे में, ई-वे जो बिल है इसके बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देख लें बिकॉज दिस कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चंस. Now, vehicle carrying the hazardous good must also be having the valid explosive licenses. So, if the bus transporter do not have a valid license, they would not be allowed to take the explosive from one country to another country. The permit would be valid for 1 year and may also be renewed after 5 years or on the yearly basis after that. तो ये कुछ key provisions हैं इस rules के. Coming to the other news, that is companies Corporate Social Responsibility Policy Amendment Rule 2021. So the Ministry of Corporate Affairs have issued a company's Corporate Social Responsibility Policy Amendment Rule 2021. और ये जो रूल है, ये जो पिछले पुराने रूल्स थे 2014 के जो रूल्स थे अंडर कंपनीज एक्ट 2030, उसको चेंज करेगी, उसमें अमेंडमेंट लाएगी. एंड अंडर द एक्ट companies are requested to spend 2% of their average net profit in last of their financial year towards the CSR. तो कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसके 2% उनको स्पेंड करने होंगे अपने नेट प्रॉफिट के फॉर द 3 financial year towards the CSR contribution, that is कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पॉइंट्स है वो आप अपने जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 में जहाँ पे आपको मौका मिले ज़रूर यूज़ करें. और अगर इस पर क्वेश्चन आती है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में, इनफैक्ट इवन इन 3 दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, मेक श्योर यू राइट ऑल द पॉइंट्स. CSR is one of the important initiatives being preparing for civil service and being a part of, you'll be soon the part of the bureaucratic system setup. तो आपके लिए जानना ज़रूरी है जो CSR के प्रोविजंस है उससे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, राइट. बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि CSR के मदद से वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं. सो यू शुड नो ऑल द प्रोविजंस दैट इज अंडर द CSR. अब कुछ की प्रोविजंस हैं, कुछ की फीचर्स की अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन है. सो द लेटेस्ट रूल रिक्वायर एवरी एंटिटी अंडरटेकिंग द CSR एक्टिविटीज टू रजिस्टर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2021. और ये जो रिक्वायरमेंट है दैट वुड अप्लाई to the projects undertaking before the implementation of this rules. So before they proceed for this, they need to have a registration for it. Now the second is CSR expenditure. तो जो 2014 की रूल थी, they provided that की expenditure undertaken on activity is specified under the count of CSR expenditure. Now these include eradicating hunger. कुछ important इनको broad areas दी गई है जहाँ पे ये काम कर सकते हैं CSR activities में. So first is eradicating hunger. सेकेंड इज प्रमोटिंग एजुकेशन. एजुकेशन के सेक्टर में ये CSR के अपनी स्पेंडिंग दे सकते हैं. थर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द PM रिलीफ फंड. तो ये 3 कोर एरियाज है जहाँ पे इनको काम करने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. Now, the Rule 2021 at CSR may be spent for the creation and acquisitions for the asset that can be held by the trust society with the CSR registration number, beneficiaries of the CSR project और public authorities. So ये कुछ न्यू चीज़ों को acquisitions और capital assets में भी चीज़ें ऐड की गई है. Now impact assessment, once the value is being expended, जो CSR के 2% की जो क्राइटेरिया है स्पेंड करने की वो स्पेंड होती है तो उसकी असेसमेंट भी की जाएगी. So companies whose CSR obligation is greater than 10 crore rupees will have to prepare a impact assessment report. उनको एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी होगी. इट्स ऑल्सो नोन एज IAR, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी होगी. और इस रिपोर्ट को दे नीड टू सबमिट विद एक्सपेंडिचर विद मोर देन 1 crore rupees. एंड एक्सपेंडिचर ऑन द इम्पैक्ट असेसमेंट मे बी काउंटेड एज CSR एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड इट डज नॉट एक्सीड 5%, राइट.
तो 2% की जो कैपिंग है उसके अंदर ही रहनी होगी इट्स इन फाइनेंशियल ईयर, एंड CSR फॉर फाइनेंशियल ईयर और 50 lakh rupees whichever is lower, right? So these are some of the assessment that would be again taken care of. Now, disclosure and reporting. So the rules require publications of additional disclosure regarding the CSR activities on company websites. उनके एनुअल रिपोर्ट में उनको ये मेंशन करना होगा कि उन्होंने जो ओवर 2% की उनकी नेट प्रॉफिट है जो 3 years में उनको एक्सपेंड करनी है वो उन्होंने कहाँ कहाँ स्पेंड किया है. Now, additionally, the CSR policy of the website must disclose the composite of the CSR committee project approved by the board, and the board which is there for the regulation would have to same maintain the data कि उन्होंने किनको किनको किन किन कंपनी को किन किन सेक्टर में काम करने के लिए अप्रूवल दिया. सो दिस इज अ चेक एंड बैलेंसेस दैट इज देयर विद द गवर्नमेंट. Now, other news that is Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. So, amid the COVID-19, government is coming up with a scheme to help the people to get their livelihood and the jobs. So, the Employees Provident Fund and the Miscellaneous Provision Act 1952 ये प्रोवाइड करती है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो EPF स्कीम है जो सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट में उसको किस तरह से कैरी फॉरवर्ड की जानी चाहिए. तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एस्टैब्लिश की जहां पे सब्सिडाइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दी जाएगी. आई विल टेल यू हाउ दिस विल वर्क. सो फर्स्ट की फीचर्स की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी EPF कंट्रीब्यूशन फॉर द न्यू एम्प्लॉय. जितने भी नए एम्प्लॉयज हैं उनका जो EPF कंट्रीब्यूशंस है वो आने वाले 2 साल के लिए टिल 2023 गवर्नमेंट वुड बी पेइंग द EPF, राइट. Now talking about for establishment within 1000 or less employees or the government will cover the EPF contribution of 24%, right. तो इसमें 12% जो एम्प्लॉयर की होगी और बाकी जो 12% है वो एम्प्लॉयज करते हैं. Now for further the government will not cover the employees contributions. So जो और दूसरे चीज है this will only be covered by the employees contributions. Now eligibility की अगर बात करें eligibility for employees the scheme would be applicable to new employees earning than 15,000 rupees. तो ऐसे employees जो 15,000 से कम जिनकी इनकम है और जो किसी एक्टिविटीज में इंगेज उनकी जो इंगेजमेंट है अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 के बीच में रही है उन लोगों के लिए गवर्नमेंट पे करेगी. और जो नए एम्प्लॉयर्स हैं जो नए एम्प्लॉयज जिन्होंने ज्वाइन किया कंपनी को नए एस्टैब्लिशमेंट को जिन्होंने ज्वाइन किया और जिनकी UN नंबर नहीं है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी. ये लोग जो हैं दीज वुड बी एलिजिबल to get the government contribution. Any EPF number processing UN number who has left the employees from March 1st 2020 to September 2020 whose exist in the UN record. And UN is an unique number that is allocated by EPFO. तो जो EPFO के डिपार्टमेंट है वो इन सारे चीज़ों को allocate करती है अंडर रूल्स 1952 एक्ट. Now, benefits under the scheme would also be available to the employees whose employer are already availing the benefits under the Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana. और अगर बात करें PMRPY तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट वुड पे कंट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड 8.33% अंडर द रूल 1952 ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज फॉर हायरिंग द न्यू एम्प्लॉयज, राइट. तो एम्प्लॉयर की तरफ से ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 3 साल तक गवर्नमेंट पे करेगी, राइट. नाउ यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर रूल्स 2021 यहाँ पे कुछ हेल्थ को लेकर के इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है और ये जो रूल्स है दैट वुड बी एप्लीकेबल एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवैम्प द ओवरऑल स्ट्रक्चर्स. So the Ministry of Health and Family Welfare has notified Unique Health Identifier Rule 2021 and the rule have issued under the Aadhaar Delivery and Financial Other Subsidies Benefit Services Act 2016. और ये जो एक्ट है विल प्रोवाइड फॉर द टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सब्सिडीज सर्विसेज टू इंडिविजुअल रेसाइडिंग इन इंडिया बाय असेसिंग देम यूनिक आइडेंटिटी नंबर और आधार नंबर. तो जो मिनिस्ट्री है इन्होंने एक UHID आइडेंटिफिकेशन क्रिएट की है फॉर द बेनिफिशियरीज जो कि इंटीग्रेटेड होगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, राइट. तो डेटाबेस वुड बी देयर सो दैट द एग्जैक्ट बेनिफिशियरीज वुड बी मैप्ड. और जो UHID है वुड फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ डेटा एंड द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड फॉर द सिटीजन. ना कुछ की फीचर्स की बात करें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया UHID क्रिएट की जाएगी तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिफिकेशंस होंगी दैट वुड बी यूज्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ UHID. क्रिएशन ऑफ UHID इज वॉलेंट्री, दिस इज नॉट मैंडेटरी. आप वॉलेंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं इसको. एंड हेल्थ सर्विसेज विल नॉट बी डिनाइड इन द एब्सेंस ऑफ UHID. अगर किसी इंडिविजुअल के पास UHID नहीं है तो उसको ऐसा नहीं है कि मना कर दिया जाएगा. ही वुड बी ऑल्सो एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट. Now, the ministry may require the additional document for creating the UHID through an order.
तो किन किन यूज ऑफ UHID एंटिटीज की बात करें तो एंटिटी वुड बी परमिटेड टू प्रोवाइड यूजर विद एन ऑप्शन ऑफ आधार वॉलेंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ ID, और ये जो शेयर करेगी डेटा इन्फॉर्मेशन की विद द हेल्थ IT एप्लीकेशंस के साथ, और इसके डेटा जो गवर्नमेंट की जो data.gov.in है या फिर और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टल है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा कलेक्ट करती है, वहाँ पे इसको स्टोर करके भी रखा जाएगा। एंड द डेटा वुड नॉट बी अगेन मिस प्रैक्टिस्ड, और इस तरह से प्राइवेसी के इश्यूज को मेंटेन किया जाएगा ताकि किसी के क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरह से डिस्क्लोज ना किया जाए। Now, requesting entity, the Ministry of Health and Family Welfare would be requiring the entity to purpose the providing of Aadhaar authentications via UHID. So, the first thing that is mandatory is Aadhaar authentication. बिना आधार आइडेंटिफिकेशंस के आगे चीजें प्रोसेस नहीं होगी। द रिक्वेस्टिंग एंटिटी इंक्लूड एजेंसीज पर्सन टू सबमिट द आधार नंबर along with the demographic, biometric information or centralized Aadhaar database for the authentication processes. Now, industrial development of Jammu and Kashmir. So, after the formulations of the union territory between the Jammu and Kashmir and Ladakh, industrial development की तरफ कुछ कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पे जो लोग हैं, खास करके people who belong to the age group of youth, they should get the job. So, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the Central Sector Scheme for the Industrial Development of Jammu and Kashmir, and the scheme provides for incentives for new and existing business to undertake the investment. तो कंपनीज को प्रमोट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। Now, the central government would operate certain scheme to the industrial development for special category states, and उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है एंड उत्तराखंड, so these are the states that would be benefited under the new scheme, the central जो sector scheme है जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है। Now, what are the key features of this scheme? Capital incentives की अगर बात करें, so the new and existing manufacturing and services sector industrial unit with investment up to 50 crore would be provided incentive for the investment. तो ऐसे कंपनी जो 50 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट करना चाहती है उनको गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स भी देगी। Now, capital interest subventions की अगर बात करें तो the new and existing industrial unit will be given the interest subvention of 6%, तो उनको 6% तक की छूट दी जाएगी, and a maximum of up to 7 year and a loan up to 500 crore rupees. So this is what government is coming up to make Jammu and Kashmir industrialized hub, वहाँ पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, and the loan available must be used for the investment in the plant and machinery, construction of building and other durable physical assets. तो इन जो पैसे उनको जो लोन दिए जाएंगे उनके कुछ क्राइटेरिया रखी गई है कि उनकी इन्वेस्टमेंट इन्हीं चीज़ों पे की जा सकती है। Now, working on the capital incentives, so the existing unit will receive the interest subvention of 5% on working capital. Working capital loan पे उनको 5% तक का subvention दिया जाएगा for 5 year, and incentive receive would be capped 1 करोड़ रुपीज। तो इंसेंटिव की जो कैपिंग है वो 1 करोड़ तक ही रखी जाएगी। Now, Startup India Seed Fund Scheme. This is again one of the important scheme that has launched by Government of India to promote the entrepreneurship in the country. So, the Ministry of Commerce and Industry has notified the Startup Seed India Scheme for 2021-2025. और जो पूरा स्कीम का एम है is to provide the financial assistance for startup across all sector for proof of concept, प्रोटोटाइप जो डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइप खास करके प्रोडक्ट ट्रायल्स हैं या फिर मार्केट एंटिटीज है, कमर्शलाइजेशन है, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं। और ये जो स्कीम है दिस वुड हैव अ कॉर्पस ऑफ 945 करोड़ रुपीज दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टार्टअप थ्रू ग्रांट एंड इंक्यूबेटर्स। तो इंक्यूबेटर्स के बारे में आपको पता होगा, वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन इन आवर डेली न्यूज एनालिसिस। इंक्यूबेटर्स खास करके उस जगह पे होते हैं कहीं कोई नई स्टैब्लिशमेंट है, कोई नई एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो अपने इंक्यूबेटर्स से भी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे इंक्यूबेटर्स, नए एंटरप्रेन्योरशिप, नए स्टार्टअप सब लोग एलिजिबल होंगे टू गेट द लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ना कुछ की बेनिफिट्स अगर बात करें, एलिजिबिलिटी सबसे पहले, सो बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, नॉट बी ओल्डर देन 2 ईयर, पुराने नहीं होने चाहिए, एंड दे डू नॉट हैव मोर देन 10 lakh rupees monetary support under any central or central government scheme. So these are the criteria, these are the eligibility criteria that a startup has to follow, and have a scalable business with a user technology, startup creation solution, health, education,
financial inclusion, defense are among which that would be given the preference. तो ये कुछ important sectors हैं जिनको preference दी जाएगी. And the startup would also receive the seed funding only once. तो ये funding जो है once एक बार दी जाएगी ताकि वो अपने startup को establish की जाए. उसके बाद once the company is set up, दोबारा वो eligible नहीं होंगे इस funding इस scheme के through लोन लेने के लिए, राइट. दे हैव टू अप्लाई टू द बैंक, देन ओनली दे कैन गेट लोन विद सम इंटरेस्ट रेट. सिर्फ वन टाइम फंडिंग ये अलाउ की जाएगी जो भी स्टार्टअप इन सारे सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिफेंस सेक्टर्स में. नाउ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जो कि देखेगी कि जो इंक्यूबेटर्स हैं उनके अलॉटमेंट किस तरह से हो रहे हैं फॉर लाइक ग्रांट ऑफ अप टू 5 करोड़ रुपीज दैट वुड बी रिलीज्ड इन इंस्टॉलमेंट बेसिस टू अचीव द माइलस्टोन, राइट. सो द अमाउंट विल नॉट बी गिवन वन टाइम, इट वुड बी गिवन ऑन इंस्टॉलमेंट, and the committee will also monitor the implementation of this scheme, right. So it is a duty of the expert committee to monitor the entire utility of that money that the startup has taken. Now incubator seed management की अगर बात करें, so each incubator would constitute an incubator seed management committee to select the startup, or committee will consist of a representative from the incubators, the state government startup nodal team, venture capital fund, एकेडमिया और द एंटरप्रेन्योरियल्स, राइट. सो इसमें कमेटी में ये मेंबर्स हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स की भी कमेटी में एक जगह रखी गई है कि जो एक्सपर्ट्स होंगे वो भी आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो होंगे. तो सारे तरह के स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टार्टअप टीम नोडल, वेंचर कैपिटल फंड, एकेडमी और एंटरप्रेन्योर, दिस वुड बी द पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स. Now this was all about the basically the PRS legislative research summary. And if you're new to our channel, you can watch daily news topic wise analysis from the Hindu and Indian Express. So this will save a lot of time and you can use that time for the upcoming prelims examination in the static portion like history, geography and all other subjects. So do ensure that you are watching this series. And also if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.